Hello, good afternoon all. Myself Shalini Dwivedi, Assistant Professor in Department of Fire Technology and Safety Engineering in IAS IPS Academy. Last time we are going through the salvage evaluation of fire situation. After the salvage evaluation, now second the step is in fire situations is fire investigation. So what is fire investigation? First of all, fire is the component of three fuel, oxygen and air. So what is going through the next step by the salvage, and for the investigation what are the steps going. So we are in today's lecture going through the fire investigation and fire investigation methods. So these are the content. So introduction, fire investigation, relation between arson and fire, investigation steps, and in fire investigation term. So in first slide I show you the what is the fire. So what is the fire? Fuel, oxygen and heat. In salvage we already taught about the fire, and again I am going to go through the what is fire. So fire is a fire triangle. In this triangle you can see fuel, heat and oxygen. So fuel, combination of combined representation of or the combination or chemical compositions of these three make a fire, and this is the fire triangle that represent the fuel, heat and oxygen in same basis. When the same three things are combined, then the fire is occurs. Heat is, and after the fire occurs, what is released? And heat is released. Heat is released energy in the form of energy when the temperature of the fuel is increased at the point where the sufficient vapors are given off or given the ignition. At the initial stage, when the fuel is burned out by the very initial form, then the oxygen is also mixed with the fuel and reproduce the heat. For example, stove, heating appliances, fireplaces and damaged wires. Fire can be a different type. It should be a electrical fire or accidental fire, or it may be in first slide we in introduction part I show you the relation between the arson and fire. What is arson and fire? Arson is a intentionally fire, and when sometime it's by the fault, by the default of some electrical appliances, so then it could be a fire. Or if it is by the some type of revenge or some type of not accidental, it by the intentionally, then it is a arson. When there is a basic proportion of oxygen that release with fuel, that gives up a fire in the form of heat energy, heat release. That the air we breathe is 21% oxygen. Fire requires atmosphere with at least 16% of oxygen. If the oxygen rate is small or minimum, then the fire stages are different and defined in different ways. Where the pool fire or combined fire, confined fire, there are two type of fire: pool fire or open fire or confined fire. That is in the enclosure fire, that is in it may be cause कि some किसी structure में, किसी room में, किसी तरीके से, तो वो होती है आपके enclosure fire. और when the fire is in the open or U shape, then it is known as a pool fire. And what is fuel? Fuel, it may be a combustible material, किसी भी state में हो सकता है. Solid, liquid, gas में mostly most solid and liquid become vapor before they burn. Then it make also a fuel triangle. When fuel, it fuel में कुछ भी हो सकता है. like कि last slide में हमने देखा कि फ्यूल जो है वो आपका स्टोव जो हो सकता है, हीट एनर्जी आपके स्टोव्स के थ्रू भी हो सकती है, और हीटिंग अप्लाइंसेस लाइक कि इलेक्ट्रिकल फायर होगा तो वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल होगा, या आप गैसोलीन्स में जा रहे हैं तो फायर प्लेसेस हो सकती है. इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स आपको साथ ऑक्सीजन के साथ जब रिप्रोड्यूस होती है तो आपको हीट मिलता है, और वो हीट जो होती है वो आपका फायर के फॉर्म में आपको मिलती है, डिफरेंट टाइप ऑफ फायर में मिलती है. फ्यूल
फ्यूल जो है इट डिपेंड्स, फायर जो है वो फ्यूल पर डिपेंड करती है कि वो कम्बस्टेबल मटेरियल है, नॉन कम्बस्टेबल मटेरियल है फायर, देन ए टाइप फायर है, बी टाइप फायर, आपको एक्सटिंग्विश किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर जो स्टेट ऑफ फ्यूल है वो डिफरेंट हो सकता है कि आपका क्लॉथ्स है, लाइक कि सम एग्जांपल्स आर क्लॉथ्स है, फर्नीचर है, कर्टेन्स, कुछ फ्लेमेबल लिक्विड सकते हैं, लाइक कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ फ्लेमेबल लाइक कि पेट्रोल, डीजल और कुछ केमिकल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, वो भी फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, वो एज अ फ्यूल हम उनको कंसिडर करेंगे। उसमें जब ऑक्सीजन मिक्स होगा तो आपको हीट रिप्रोड्यूस करेगी और वो हीट जो है वो आपके फायर के फॉर्म में होगी। अगर फायर जो है वो आपके 4 फॉर्म में हो सकती है, उसके 4 स्टेजेस होते हैं। व्हेन जब बर्नआउट होता है तो 4 स्टेजेस में होती है। इनिशियल स्टेज होता है, आपका ग्रोथ स्टेज होता है, फुली डेवलप स्टेज होता है, आफ्टर दैन डिके स्टेज होता है। फुली डेवलप में जब आपका फुल कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि सारा कम्बस्टेबल मटेरियल बर्न आउट हो गया है तो वो फुली स्टेज होता है। इनिशियल स्टेज में लाइक कि कम्बस्टेबल मटेरियल अगर कम्बस्टेबल है, अगर सोफे पर कहीं सिगरेट बाय द चांस छूट गई है तो वहाँ पर बहुत छोटा सा इग्निशन स्मोक होगा और वहाँ पर कम्बस्टेबल मटेरियल है, कॉटन है या कोई और मटेरियल है, उसके थ्रू आपका जो फायर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो सेकेंड स्टेज जो रहेगा वो आपका ग्रोथ स्टेज रहेगा। एंड थर्ड वन आफ्टर देन कि अगर उसके साथ में और भी कम्बस्टेबल मटेरियल है या उसको फुल ऑक्सीजन मिल रहा है, देन इट इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो हीट रिलीज जो है वो इतना ज़्यादा होने लगेगा कि वो फायर के फॉर्म में चेंज होने लगेगा। धीरे धीरे वो आपका स्मोक प्रोड्यूस करेगा और फुल जो अगर एनक्लोज फायर है तो फुल रूम में आपकी जो फायर है वो प्रोड्यूस हो जाएगी और उसको हम बोलेंगे एनक्लोजर फायर और कन्फाइंड फायर। इट में भी कि अगर वहाँ इसको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है या नेचुरल वेंटिलेशन इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपका फायर को कंट्रोल कर सके, तो उसको ऑक्सीजन रेट इतना ज़्यादा मिल रहा है कि वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है और हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो फायर प्रोड्यूस्ड हो रही है। तो ये 3 स्टेजेस मिलकर आपको फायर मिलती हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। अब नेक्स्ट जब हम बात करें इस लेक्चर में हम लोग फायर इन्वेस्टिगेशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। फायर इन्वेस्टिगेशन, तो फायर इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं तो इट मे बी कि आपकी फायर जो है वो नेचुरल फायर है या बाय डिफ़ॉल्ट आपके किसी प्रॉब्लम की वजह से फायर प्रोड्यूस्ड हो गई है, या आर्सन फायर है, आर्सन है। तो आर्सन का इन्वेस्टिगेशन करना, फायर का इन्वेस्टिगेशन, दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको स्टडी करनी होगी, आपको फोरेंसिक एनालिसिस करने होंगे, सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने होंगे, देन यू गो थ्रू द फायर इन्वेस्टिगेशन। लाइक कि जैसे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी चीज़ को तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जाना होता है कि उसका ओरिजिन कहाँ से प्रोड्यूस्ड हुआ है। इसीलिए ओरिजिन प्रोड्यूस करने के लिए ओरिजिन को हम फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ सबसे पहले आपको उस सिनेरियो में जाना होगा। लाइक कि अगर वहाँ सिनेरियो में जाना कितना मुश्किल है तो सैल्वेज जब हमने किया है उस ड्यूरेशन में कुछ कलेक्शन किए, कुछ चेकलिस्ट बनाई है, उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट की फायर किस तरीके से हुई है। तो जब हम इंट्रोडक्शन में जा रहे हैं तो फायर इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टेंसेस के थ्रू आप एक स्टडी कर रहे हैं थ्रू द एक प्लान है आपके पास जिसमें कि आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, आप फायर के डायनामिक्स को कलेक्ट कर रहे हैं, आपने विटनेस भी आपने उनसे बात की है कि विटनेसेस वो बताएंगे आपको और बिहेवियर जो है वो भी बताएंगे आपकी कि आप किस तरीके की वहाँ पर फायर प्रोड्यूस्ड हुई है। केमिस्ट्री ऑफ फायर, लाइक जैसे हमने अभी ट्राइंगल की बात की थी तो उसमें थ्री कंपोनेंट्स जब मिलते हैं तो फायर प्रोड्यूस्ड होता है। तो केमिकली जब हम बात करते हैं तो फायर जो है वो एक ऑक्सीडेशन है, कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन एंड सब्सटेंस, लाइक कि फ्यूल जो है वो आपका जो फ्यूल है और ऑक्सीजन का कॉम्बशन है, प्रॉपर जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो वहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस इट मे बी कि वो फायर में प्रोड्यूस हो जाती है। स्टार्ट फायर तो एक मिनिमम टेम्परेचर, लाइक कि जैसे
मैंने आपको बताया कि 4 स्टेजेस होते हैं। इंसिपेंट जो स्टेज होता है वो मिनिमम टेम्परेचर, अगर वहाँ पे कोई कंबस्टिबल मटेरियल नहीं है तो इट मे बी कि वो नील डाउन भी हो जाएगा, तो वहाँ फायर प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर वहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस जो हो रही है वो ज़्यादा हो रही है तो वो सेकेंड स्टेज में, ग्रोथ स्टेज में चली जाएगी। तो टू स्टार्ट फायर तो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो इग्नाइट करने के लिए फ्यूल को, तो उसको बोल रहे हैं हम इग्निशन टेम्परेचर। टू स्टार्ट फायर द मिनिमम टेम्परेचर नीडेड टू स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट फ्यूल नोन एज इग्निशन टेम्परेचर मस्ट बी रीच। सबसे पहले इग्निशन टेम्परेचर, जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है, इतने बॉइलिंग पॉइंट में आपको गैस एंड वेपर्स मिलते हैं, उसी तरीके से जब फ्यूल को जब कंबशन मटेरियल के साथ ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होता है तो हीट इतनी प्रोड्यूस हो जाती है कि वो इग्नाइट फ्यूल हो जाता है, मतलब वहाँ पर फायर प्रोड्यूस हो जाता है। देन द हीट इन्वॉल्व व्हेन अ सब्सटेंस बर्न इज नोन एज अ हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है कि वो फायर में प्रोड्यूस्ड हो रहा है। दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ फायर। अब क्योंकि स्टेजेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, अब उनको भी लाइक कि आपका पेट्रोल में फायर हुआ है या आपके किसी क्लॉथ में हुआ है, किचन वेयर में हुआ है, कन्फाइन में हुआ है, कि वो वहाँ पर स्टेज कैसा था वो डिपेंड करता है। वो भी होता है आपका केमिस्ट्री ऑफ फायर। लिक्विड बर्न व्हेन द टेम्परेचर इज हाई इनफ टू वेपराइज इट, that is known as a फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट जब हम किसी भी लिक्विड को बर्न आउट कर रहे हैं और उसका जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है, जो उसका हीटिंग टेम्परेचर है उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है तो और वो वेपर करने लगा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। आपको इन्वेस्टिगेशन करने से पहले सारी केमिस्ट्री ऑफ फायर भी पता होनी चाहिए आपको। जो आपका सॉलिड लिक्विड गैसेस हैं वो किस तरीके से फायर को प्रोड्यूस करके कैसे उससे रिलेट करते हैं वो सब, और उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, उसके बाद ही फायर प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ नोन एज केमिस्ट्री ऑफ फायर। वाइल जब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, वेपराइज हो रहा है, हाई इनफ हो रहा है, उसको हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो उस सॉलिड में जब टेम्परेचर जो है वो हाई इनफ हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है किसी और गैसियस प्रोडक्ट में, दैट इज नोन एज ए पायरोलिसिस। पायरोलिसिस लाइक कि आपने वुड को कहीं पर फायर कर या वाइल्ड फायर में जब हम बात करते हैं तो सॉलिड जो है आपका वुड जो है वो हीटअप हो गया है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो वो कुछ गैस भी प्रोड्यूस कर रहा है और उसका जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको हम पायरोलिसिस बोलते हैं। सेकेंड, जैसे मैंने आपको स्टेज बताया था, इनिशियल स्टेज में हाईएस्ट टेम्परेचर तक जब जाते हैं तो फायर प्रोड्यूस होती है। जब फायर को अगर हम उस पर्टिकुलर स्टेज पे हम सप्रेस कर देंगे तो वहाँ पर फायर इंक्रीज नहीं होगी। अगर आपको नहीं पता चला है और उस स्टेज से ज़्यादा यानी फ्लैश पॉइंट से ज़्यादा या पायरोलिसिस डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट सॉलिड स्टेज में जाएंगे तो वहाँ पर पायरोलिसिस पॉइंट से ज़्यादा यानी कि उस पर्टिकुलर हॉट इनफ टेम्परेचर से इंक्रीज हो गया है वो पर्टिकुलर कंबशन मटेरियल या आपका फ्यूल जो है, तो सेकेंड स्टेज में आपका ग्लोइंग कंबशन आएगा, ग्लोइंग पॉइंट आएगा, ग्लोइंग स्टेज आएगी। तो ग्लोइंग कंबशन और स्मोल्डरिंग जो है वो बर्निंग ऑफ फ्यूल एयर इंटरफेरेंस होता है, लाइक कि आपके किसी सोफे पर सिगरेट का गिरना, तो वो होता है आपका ग्लोइंग, धीरे 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 करके स्मोल्डरिंग कर लेती है और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाती है, उसको हम बोलते हैं ग्लोइंग कंबशन। स्पॉन्टेनियसली इसे आपको जब बात करते हैं तो पुअर जब वहाँ पर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है, ये बेसिकली आपके रेसिडेंशियल या कॉर्पोरेट स्टेजेस में हो सकता है क्योंकि वहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो स्पॉन्टेनियसली कंबशन की जब हम बात करते हैं तो आपका जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ पुअर वेंटिलेशन की वजह से हो रहा है या किसी कंटेंट एरिया में हो रहा है। अभी आप नेक्स्ट जो केमिस्ट्री ऑफ फायर है वो हम एक फ्यूल है वो प्रेजेंट होता है जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन, अ फ्यूल मस्ट बी प्रेजेंटेड। वहाँ जब कोई फ्यूल ही नहीं होगा सॉलिड लिक्विड स्टेज में, गैस स्टेज में, तो कंबशन की बात ही नहीं होती। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन होना। तो ऑक्सीजन अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो सफिशिएंट जो कॉम्बिनेशन है वो आपका फ्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा और फायर हीट प्रोड्यूस्ड हो जाएगी।
थर्ड वन इज हीट मस्ट बी अप्लाइड। अब उतना हीट मतलब कि आपका जो टेम्परेचर है वो पर्टिकुलर जितना भी उसका फायर फ्लैश पॉइंट या आपका इग्निशन टेम्परेचर तक जाता है और उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वो आपका हीट अप से टेम्परेचर जो है वो ग्लोइंग स्टेज में चले जाता है। हीट मस्ट बी अप्लाइड टू इनिशिएट द कंबशन एंड सफिशिएंट हीट मस्ट बी जनरेटेड टू सस्टेन द रिएक्शन। वहाँ पर आपकी रिएक्शन होने लगती है। अब जब आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, जब आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है, आपका फ्यूल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो 3 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेजेस मतलब हीट ट्रांसफ़र के स्टेजेस होते हैं। तो उसके मैकेनिज्म जो है वो कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन होता है। एज यू नो कि कंडक्शन जो है वो मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। जब हम सॉलिड ऑब्जेक्ट में हीट प्रोड्यूस हो रही है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा तो वो कंडक्शन होता है। ऐसा ही सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम रेडिएशन बोल रहे हैं। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड लास्ट वन इज कन्वेक्शन। दीज आर द 3 stages of heat transfer: conduction, radiation and convection. Convection is the transfer of heat by the movement of molecule within a liquid or gas. जब हम कन्वेक्शन की बात करते हैं तो स्मोक मूवमेंट्स भी होने लगते हैं। तो जब भी हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, फायर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हीट ट्रांसफ़र इज़ इम्पॉर्टेंट। हीट ट्रांसफ़र इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो फ्यूल है वो किस स्टेट में है, किस स्टेट में है तो उसका जो मैकेनिज्म होगा वो इन 3 यानी कि कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन के थ्रू ही मूवमेंट करेगा। चाहे वो सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, चाहे वो आपका लिक्विड एंड गैसेस हो। नेक्स्ट जब हम अभी आपने हीट ट्रांसफ़र तक बात कर लिए, अब हम नेक्स्ट जो है वो आपका फायर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। आपका फायर इन्वेस्टिगेशन जो है लाइक कि कोई सीन है, कोई ऑटोमोबाइल है, वहाँ पर फायर इंड्यूस्ड हुई है और उस फायर इंड्यूस में या फिर आपके जो रूम है उसमें फायर इंड्यूस्ड हुई है। तो मेजर ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो हमारा ये है कि हमको छोटी से छोटी एविडेंस को भी कलेक्ट करना है और इन्वेस्टिगेट करना है कि नेक्स्ट टाइम जो आपका जो फायर इंड्यूस हुआ है वो नहीं हो। तो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव जो है ऑफ अ फायर सीन, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फायर सीन एग्जामिनेशन इज द रिकग्नाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालाइज ऑफ फायर पैटर्न। लाइक कि किसी सिनेरियो, कोई भी सिनेरियो क्रिएट हुआ है आपके ऑयल एंड गैस में या केमिस्ट्री प्लांट में या किसी भी प्लांट में, आपके घर में, रेसिडेंशियल में, तो हम सबसे पहले एग्जामिनेशन इसीलिए करते हैं जिससे हम उसको रिकग्नाइज कर पाए कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका ये रिपीट ना हो। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो स्टेप्स हैं वो जो फायर इंड्यूस्ड हुई थी वो क्यों हुई थी, एंड देन आप उसको एनालाइज करोगे कि जो उसके डायनामिक्स हैं यानी कि उसका हीट प्रोड्यूस कितना हुआ था, HRR कितना रहा, हीट रिलीज रेट कितना था, फ्यूल लोड उसमें कितना फ्यूल था कि इतना ज़्यादा हाई आपका कंबशन हो गया और इतना हाई आपकी फायर इंड्यूस्ड हुई है। एंड पैटर्न जो है वो फायर के वो किस तरीके के, जो अब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम सीन को देखें, उसको एग्जामिन करें, रिकग्नाइज करें, आइडेंटिफाई कर ले। रिकग्नाइज करने के बाद आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये आर्सन है या फायर है, आपका नेचुरल है, बाय डिफॉल्टेड है या इंटेंशनली आपकी फायर है। आप उसके बाद उसके पैटर्न को डिफाइन कर पाओगे कि वहाँ पे स्मोक मूवमेंट कितना था, HRR फ्यूल वगैरह कितना था, डायनामिक्स उसके जितने थे वो हम उसको फाइंड आउट कर पाए। तो दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फायर लॉस इन्वेस्टिगेशन। एंड नाउ व्हाट इज फायर लॉस इन्वेस्टिगेशन? आपका किसी भी प्लांट में, किसी भी रेसिडेंशियल में, कमर्शियल में, कहीं भी जहां आपको एक इन्वेस्टिगेटर, एज अ फायर डिसिप्लिनर आपको वहां पर इन्वेस्टिगेट करने जाना है तो आपको सबसे पहले एक सिस्टमेटिक मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोसेस को एम करना होगा जिससे कि आप उसका ऑरिजिन फाइंड आउट कर पाएँ, आप उसके कॉज को फाइंड आउट कर पाएँ और वहाँ पर क्या क्या फैक्टर थे जिसके कारण से ये सारे फायर इंसिडेंट जो हैं वो प्रोड्यूस्ड हुए। देन इन दीज वर्ड्स फायर लॉस investigation is a systematic and multidisciplinary process aimed to determine the origin, cause and contributing factors of a fire incident. It also involves like कि आप जब पूरा origin और cause को जब आप find out कर रहे हो
तो इसके थ्रू आप क्या फाइंड आउट कर पाते हैं, इसके डायनामिक्स को फाइंड आउट कर पाते हैं, आप इसके साइंटिफिक प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर पाते हैं। जब आप टेक्निक्स की बात करते हैं तो लाइक CFD इज द कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को आप फाइंड आउट कर पाते हो। तो और भी जैसे फॉरेंसिक, आपने बार बार रिपीटेटिवली फॉरेंसिक वर्ड्स को सुन रखा है, जहां हम हर छोटी से छोटी एविडेंस को के थ्रू हम उसका इंसिडेंट का पर्टिकुलर ओरिजिन जान पाएंगे। तो फॉरेंसिक टेक्निक्स के थ्रू हम वहाँ पर आपका फायर लॉस इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, और इन्वेस्टिगेशन मेथडोलॉजी होती है जिससे कि आप उसको कैलकुलेट कर पाए और ये सिनेरियो जो है वो वापस से रिपीट ना हो। जितना भी लॉस है इसके थ्रू जो पर्सन्स हैं वो आपका इंश्योरेंस क्लेम भी कर सकते हैं। जो भी कॉजेस हैं उसके थ्रू आप पूरे ओरिजिन से लेकर आप मैनुअल तक जब आप आएंगे तो उसके थ्रू आप जो भी आपने इंश्योरेंस क्लेम किया है वो भी आप इसमें कर पाएंगे। थ्रू द इन्वेस्टिगेशन आप ओरिजिन से लेकर आप अपना क्लेम तक कवर कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट की इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप ओरिजिन, कॉज एंड मेथड्स को आप फाइंड आउट कर पाते हो। तो सबसे पहले कि हम फायर इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपका डिटरमाइन करते हैं कॉज की आपका जो फायर है वो बाय साइंटिफिकली है, किसी की वजह से या फिर आर्सन हुआ है या किसी ने आपके वहाँ पर फायर को इंड्यूस किया है, इंटेंशनली फायर किया है। तो फायर इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट पॉइंट इज कॉज। तो हम डिटरमाइनिंग कॉज, फायर इन्वेस्टिगेटर एम्प्लॉय साइंटिफिक मेथड्स टू डिटरमाइन द ओरिजिन एंड कॉज ऑफ फायर। साइंटिफिक मेथड लाइक कि उसका जो हीटिंग पॉइंट है, उसके जो टेम्परेचर्स हैं, उसका जो डायनामिक है, उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि पैटर्न जो है, रेसिड्यूज यानी कि जो बचा हुआ पैटर्न है फायर जो आपके पार्ट्स रह जाते हैं, उसके थ्रू हम वहाँ पे पता कर पाते हैं कि किस तरीके का फायर हुआ है। आर्सन इन्वेस्टिगेशन में कि जो आपकी फायर है वो सस्पेक्टेड फायर है, दैट इज आर्सन। स्पेशली टेक्निक के थ्रू हम इसको भी फाइंड आउट कर पाते हैं। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग थ्रू द कॉज। तो डिटरमाइनिंग कॉज आर आर्सन इन्वेस्टिगेशन। अभी आर्सन और फायर के साथ क्या रिलेशन है? आर्सन एज अ क्रिमिनल एक्ट्स। तो आर्सन जो है वो मर्शली एक्सीडेंटल है, आपके किसी पर्सन की वजह से हुआ है, या किसी ने रिवेंज लेने के लिए आपने किया है, या इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से हुआ है, नेचुरल इवेंट की वजह से, तो वो आपका क्रिमिनल एक्ट है या बाय नेचुरल हुआ है। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करेंगे आर्सन फायर को लेकर, तो आपका एग्जिबिट डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मल्टीपल पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। अगर फायर इंड्यूस हुई है तो सेम पॉइंट पर आपका सेम लिक्विड से, सेम प्रोसेस से, सेम जगह पर आपका अगर नेचुरल हुई तो नहीं हो सकता है। आपका बहुत जगह पर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ ऑरिजिन नहीं हो सकते हैं। आपका यूज़ ऑफ एक्सेलरेंट, यानी कि अगर कोई गैसोलीन है तो 2-3 पार्ट्स पर वहाँ पर इवेल्यूएट आप कर सकते हो उसको, कि आपने वन प्लेस पर फाइंड आउट किया, सेकंड प्लेस पर फाइंड आउट करा, एंड देन द पैटर्न, कि पैटर्न कैसा था फ्रॉम द एक्सीडेंट फायर से। उसका अगर एक्सीडेंट फायर है तो सेम पैटर्न पर ही होगा, और आर्सन है तो फिर आपका डिफरेंट पैटर्न हो सकता है। तो ये सारे कुछ ट्रिक्स हैं, ट्रेट्स हैं जो कि आपके क्रूशियल इन्वेस्टिगेटर्स यूज करते हैं। आइडेंटिफाइंग दिस ट्रेट इज क्रूशियल फॉर इन्वेस्टिगेटर। फायर इन्वेस्टिगेशन बेसिक। अभी हम जब बेसिक की बात करें तो नॉर्मल जब हमको कुछ और फाइंड आउट करना होता है, लाइक कि कॉमनली हम जब किसी चीज को बचपन में आपने पजल्स फाइंड आउट की होगी 1 2 3 करके, लाइक वैसे ही जब आप किसी सिनेरियो पे जा रहे हैं, आप किसी सीन पर जा रहे हैं, तो बेसिक हमारे दिमाग में होता है कि लाइक कि वहाँ पर स्मोक जनरेशन कैसा हुआ, दूर से कितना धुआं, ब्लैक क्लाउड्स कितने दिख रहे हैं, यू शेप है, वी शेप है, किस तरीके की फायर आपको वहाँ पे दिख रही है। आपने अगर फोटोग्राफ क्लिक्स किए हैं तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ को भी आप पता कर लेंगे कि ये सारे बेसिक्स हैं। आपने कुछ एविडेंस कलेक्ट किए, लाइक कि फायर आइटम्स, वहाँ पे जो आपके क्राइम सीन था वहाँ से कुछ एविडेंस कलेक्ट कर लिया, जो वहाँ पे पर्सन थे उनको हमने एज अ विटनेस हमने उनको इंटरव्यू किया, उनके बिहेवियर को देखा, देन हम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन की वेरी फर्स्ट जो था
लाइक अगर हम होम की बात करें या किसी पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पर इस पर्टिकुलर पूल एरिया में हुआ है या कन्फाइंड स्पेस में हुआ है, तो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन हम फाइंड आउट कर पाएंगे। सोर्स क्या था, हीट सोर्स जो था वो कैसा था आपका, वहाँ पर फ्यूल जो था और ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम थी वो कैसी थी वहाँ पर, तो वो सब हम फाइंड आउट करते हैं। हाइपोथेसिस पे भी हम इस पर वर्क करते हैं कि लाइक ये सिनेरियो फर्स्ट है या इससे पहले भी हम इसको देख चुके हैं, तो वहाँ पर क्या सेफ्टी फॉल्ट्स रह गए थे जिसके कारण से ये रिपीटेटिवली अकर हुआ है। तो ये सारे जो हैं वो आपके बेसिक्स हैं। वर्क फ्रॉम द लीस्ट डैमेज एरिया और टू द मोस्ट हेवीली डैमेज एरिया, डॉक्यूमेंट विथ नोट्स, फोटोग्राफ एंड वीडियोज, कलेक्ट एविडेंस, interview witnesses, and determine the point of origin, determine the heat source, hypothesis the reasons for the fire. These are the some investigation steps, basic investigation steps. First one is physical evidence. जब भी हम किसी को देखते हैं तो हम दूर से भी देखकर हम फाइंड आउट कर पाए, तो दैट इज नोन एज अ फिजिकल एविडेंस. फायर पैटर्न, विटनेस स्टेटमेंट एंड द एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन एरिया सच एज अ फायर डायनामिक्स. फायर डायनामिक्स लाइक कि जितना भी आपका हीट रिलीज है, जितनी भी आपके हीट रिलीज है, फ्यूल लोड है, मास लोड है, ये सारे फायर डायनामिक्स में आएंगे. देन मटेरियल, वहाँ पे मटेरियल कौन सा था, तो मटेरियल साइंस एंड फॉरेंसिक एनालिसिस. Physical evidence. What is physical evidence? Physical evidence in fire investigation refer to tangible materials and residues. Tangible materials and residues, जो भी वहाँ पे बचा कुछ रह गया है, आपदा का जो बचा रहता है, behind रह गया है, जिसको आप during the salvage और overhaul के थ्रू भी आप उसको find out कर सकते हैं, आप analyze कर सकते हो. Analyzing this evidence is a fundamental aspect of determining the origin, cause and circumstances surrounding a fire incident. ये कितने टाइप के हो सकते हैं? फायर डैब्रिश हो सकता है जिसमें कि आप रेसिड्यूज के थ्रू, बर्न मटेरियल के थ्रू, आपके वुड, फैब्रिक, प्लास्टिक, इवन दो कि आपकी जो डोर्स है, विंडोज है, उनके ग्लास के क्रैक्स हैं, उनके थ्रू भी आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं. ये सब हम देख के भी पता कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको फिजिकल एविडेंस में कलेक्ट करें. जो बहुत ज़्यादा सीनियर होते हैं, सीनियर फायर ऑफिसर्स होते हैं, फायर इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो सीन को देखकर ही फिजिकल एविडेंस के थ्रू ही बता देते हैं कि वो आर्सन है, फायर है, किस तरीके का फायर वहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुआ है. तो फर्स्ट वन इज फिजिकल एविडेंस. Next type of a physical evidence is accelerant and intangible liquids. Detection and analysis of residue from accelerants or intangible liquids can indicate arson and intentional fire settings. And next is fire pattern. जब हम फिजिकली फाइंड आउट कर लेते हैं फायर पैटर्न्स, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके का फायर पैटर्न हुआ है, फुली इन्वॉल्व है या ग्रोथ स्टेज पर ही था या डिके टाइम तक ही वो पूरा प्रोड्यूस्ड हुआ है. तो फायर पैटर्न को देखकर हम डिफाइन कर सकते हैं. फायर पैटर्न रिफर्स टू विजिबल मार्किंग एज अ कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट बाय फ्लेम्स यूजिंग अ फायर इंसिडेंट. द मेन थिंग इज द लेफ्ट बाय फ्लेम्स. फ्लेम्स के थ्रू आप पता कर सकते हो कि फ्लेम लाइक कि नॉर्मल की ब्लैक ड्राफ्ट था, ब्लैकआउट था, वहाँ पर किस तरीके से आपके सीलिंग तक जाके आया है या नॉर्मल आपकी फायर थी. तो थ्रू द फायर पैटर्न वी कैन एनालाइज द टाइप ऑफ द पैटर्न. वी शेप बर्न पैटर्न्स होते हैं जो कि आपके वॉल्स पर दिखते हैं. टाइप ऑफ फायर पैटर्न की जब हम बात करें, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ फायर पैटर्न. वी शेप बर्न पैटर्न commonly observed on walls and other vertical surfaces. V shape patterns point towards the origin of the fire, indicating the direction of the fire spread. Next one is U-shaped. U-shaped often on ceiling and overhang. U-shaped pattern signifying the fire point of origin beneath the structure. Like कि corner से लेकर U-shape जब बन रहा है तो आपका जो structure है वहाँ पर पूरा fully involvement pressure difference आप find out कर सकते हो. उसके through आपको shape के through या pattern के through वहाँ जो wall पर, ceiling पर जिस तरीके की आपको smokes या आपके जो blackouts या आपके जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, रेसिड्यू पॉइंट्स दिख रहे हैं, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि आप जो यू टाइप है, वी टाइप है या आइलैंड है. आइलैंड ऑफ फायर, अनबर्न्ड एरिया सराउंडेड बाय फायर कैन बी प्रोवाइड इनसाइट इनटू द फायर्स प्रोग्रेशन एंड पोटेंशियल इग्निशन सोर्सेस.
Next is witnesses. Witness statements like a role in reconstructing the event leading up to the fire, providing a valuable insight into its origin, development and potential causes. Like कि आपका टेस्टिमनी कैसा है, कैसे वर्कआउट कर रहे हैं आप, जो वहाँ पे विटनेस था उसने जब फ़ोन किया था, लाइक उसकी वॉइस कैसी थी, नाउ हाउ इज़ डीलिंग विथ यू, तो आइडेंटिफाई करना उसका पोटेंशियल कैसा है, क्या वो सही से देख पाया या ही मेकिंग अ स्टोरी। तो ये सारे विटनेस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि वेरी फर्स्ट जब आपको कॉल किया तो वो कौन था, और ये सारी बातें हम यहाँ पर इन द स्टेप ऑफ फायर इन्वेस्टिगेशन भी यूज़ करते हैं। तो क्रिटिकल टेस्टिमनी, आपने कोई एक टेस्टिमनी बनाया है तो आपने पॉइंट आउट कर लिया कि विटनेस जो है मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे जो ओरिजिन, डेवलपमेंट और पोटेंशियल कॉजेज को वो अच्छे से डिफाइन कर पाए। आइडेंटिफाई पोटेंशियल विटनेस कि वो बताने लायक है या नहीं, या वो अंडर द बिहेवियर है, या उस पर कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है। कंडक्टिंग इफेक्टिव विटनेस इंटरव्यूज, इंफॉर्मेशन टू गैदर फ्रॉम विटनेस, चैलेंजेस इन विटनेस स्टेटमेंट, लाइक आपने 2-3 क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछा तो ही और शी मे बी आंसर इन डिफरेंट वेज, ये भी एक चैलेंज हो सकता है। एक्सपर्ट इवेल्यूशन ऑफ विटनेस स्टेटमेंट, लाइक कि वो आप पर्टिकुलर सिनेरियो से लेकर आप उसे क्वेश्चन पूछ रहे रिपीटेटिवली, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उसका बिहेवियर कैसा है, वो साइकोलॉजी फिट है या नहीं, या किसी प्रेशर में आके वो किस तरीके का आंसर कर रहा है। दैट इज ऑल्सो द मेन पार्ट ऑफ द फायर लॉस इन्वेस्टिगेशन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं फायर डायनामिक के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि जो सिनेरियो क्रिएट हुआ था वो नेक्स्ट जो हायरार्की है उसके थ्रू किसी फायर एंड सेफ्टी के फॉल्ट की वजह से हुआ है या इनिशियल फर्स्ट स्टेज पे हुआ है, और हम उसको ब्रेकअप कर पाए, नेक्स्ट जो आपका सिनेरियो है वो वापस से क्रिएट ना हो। तो ये सारे जो पार्ट्स है वो फायर डायनामिक, जिसमें कि आप मैथमेटिकली आप बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो, और ये सब जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें, फायर का सारा बिहेवियर पता चल जाएगा कि वहाँ किस तरीके की फायर हुई थी, वो क्या कंपोनेंट था, वो पर्टिकुलर स्टेज कौन सा रहा और उसके स्प्रेड stages कौन से थे। That is known as the fire dynamic. Fire dynamic encompasses the study of how fire start, spread and behave within a given environment. Understanding fire dynamic is fundamental to conducting through fire loss investigation. So first one is component like a fuel in ignition and fire ignitions, कि वहाँ पर आपका ignition stage ये हीट कितना था, फायर ग्रोथ कितना हुआ। आप मैं पहले भी आपको बताया 4 टाइप के आपके फायर ग्रोथ स्टेजेस हो सकते हैं। फायर स्प्रेड कितने टाइप की हुई है, फायर स्प्रेड मतलब कि उसका पैटर्न कौन सा था, 3 टाइप ऑफ पैटर्न हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं। हीट रिलीज रेट, एंड वहाँ पर आपका उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितना मास प्रोड्यूस, कितना मास बर्न आउट हुआ है, तो उसने कितना हीट रिलीज किया है, और उस पर्टिकुलर टाइम में टेम्परेचर कितना था, हीट रिलीज रेट एंड टेम्परेचर। फायर बिहेवियर कैसा था उस पर्टिकुलर स्पेस में, कंपार्टमेंट में, एंड पोस्ट फायर एनालिसिस, ये सारे प्रोसेस जो हैं वो हम फायर डायनामिक में कैलकुलेट करते हैं। दैट गिव्स, ये आपके पूल फायर के लिए डिफरेंट होते हैं और कंपार्टमेंट फायर के लिए डिफरेंट होते हैं। But points of fire loss investigation are same for the डिफरेंट टाइप ऑफ सीन्स, क्योंकि बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो आपका फिजिकल एविडेंस का लेना, आपका डायनामिक्स को कलेक्ट करना, आपके विटनेसेस को लेना, ये सारे बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो सब में सेम ही रहते हैं। मटेरियल साइंस, मटेरियल लाइक के बिहेवियर ऑफ मटेरियल विद द कंपोजिशन, कैसा रहा, उसकी प्रॉपर्टी कैसी थी, जो कि आपके मटेरियल अगर अनकम्बस्टेबल है तो इतना ही फुली डेवलप फायर को इंड्यूस नहीं कर सकता है, और इसीलिए मटेरियल साइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है फायर लॉस इन्वेस्टिगेशन में, कि मटेरियल जो है वो पर्टिकुलर उस ड्यूरेशन में कैसा कंपोजिशन प्रोड्यूस कर रहा है उस फायर में। तो ये है आपका फायर लॉस इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट मटेरियल रिएक्ट to and are affected by the fire. Building fire are different. Building fire में आप जब इन्वेस्टिगेट करने जाओगे तो फायर रेसिस्टेंस जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो सकता है, वुड हो सकता है, कंक्रीट, स्टील, प्रोवाइड इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ अ बिल्डिंग ड्यूरिंग अ फायर, इंटीरियर फर्निशिंग हो सकती है, तो उसमें कुछ फ्लेमेबल लिक्विड्स हो सकते हैं, फ्लेमेबल आपका कुछ डेकोरेशन में रखा हुआ है तो वो इट मे बी कि वो फ्लेमेबल हो सकता है, कम्बस्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इंटीरियर मटेरियल में, फर्नीचर, फैब्रिक और कारपेट हेल्प डिटरमाइन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू फायर डेवलपमेंट. Forensic analysis. Forensic analysis in fire loss investigation involves the application of scientific method to gather, analyze and interpret evidence related to a fire. It aims to uncover the cause, origin and circumstances surrounding the incident. Forensic analysis इसीलिए needed है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम नहीं देख पा रहे हैं और वहाँ पे रिएक्शन किस तरीके का हुआ है तो हम उस पर्टिकुलर थिंग को या उस डेब्रिश को या उस रेसिड्यूज को, उस पर्टिकुलर को हम ले जाके फॉरेंसिक लैब में देते हैं. तो वहाँ पर आप फॉरेंसिक एनालिसिस के थ्रू भी पता कर सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके का कॉज हुआ था, क्या ओरिजिन रहा, क्या सर्कमस्टेंसेस की फायर किस तरीके की हुई है. तो फायर सीन एग्जामिनेशन भी करते हैं, इसमें केमिकल एनालिसिस भी करते हैं. तो आप ले जाके फिजिकल एविडेंस या आपका जो पैटर्न है, कुछ मटेरियल है, वो ले जाके हम उस पर्टिकुलर सीन से फॉरेंसिक लैब में देंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका जो पैटर्न था वो किस तरीके का था. केमिकल रिएक्शन भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर पाते हैं. तो देयर आर टू टाइप ऑफ फॉरेंसिक एनालिसिस, फायर सीन एग्जामिनेशन एंड केमिकल एनालिसिस. यूटिलाइजिंग केमिकल एनालिसिस, यूटिलाइजिंग केमिकल एनालिसिस techniques to identify residues, accelerant and other substances present at the fire scenes. What are the fire terms? अभी हम जब हम फायर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो हमको पता होने चाहिए. वेरी फर्स्ट इज द फायर. तो फायर अभी आपको पता है कि प्रोड्यूस व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज रैपिड ऑक्सीडेशन. रैपिड ऑक्सीडेशन इसीलिए क्योंकि हम ट्राइंगल से जो हमको पता है कि आपका फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, तो वहाँ पर जितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगा जो आपके हीट प्रोड्यूस करेगा तो वो ही बताएगा कि आपका किस तरीके का फायर वहाँ पर प्रोड्यूस होता है. प्रोड्यूस व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज रैपिड ऑक्सीडेशन इन्वॉल्विंग हीट एंड लाइट. फायर ट्राइंगल शोज 3 एलिमेंट. ये 3 एलिमेंट जो हैं वो फायर प्रोड्यूस करने में नीडेड हैं. ये बेसिक नीड हैं, अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो फायर सस्टेन नहीं करेगी. शो 3 एलिमेंट नीडेड टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन अ फायर. Flash point, the lowest temperature to which a substance must be heated in order for the substance to give off vapor which will burn when exposed to a flame or ignition source. Point of origin, the location where the fire started. Burn pattern, notable pattern created by the fire as it burned. एक्सेलरेंट क्या होता है आपका? सब्सटेंसेस सच एज गैसोलीन, पेंट, थिनर एंड अल्कोहल दैट एक्सेलरेट द बर्निंग प्रोसेसेस. लाइक अ कैटलिस्ट की वो कॉज नहीं है बट उसकी वजह से आपकी फायर जो है और ज़्यादा इंड्यूस्ड हो गई है. पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है आपका बर्न पैटर्न जो है या डैमेज जो है जिसके थ्रू आप फायर जो है वो स्टार्ट हुई है. बर्न पैटर्न एंड अदर डैमेज कैन हेल्प डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन और द लोकेशन वेयर द फायर स्टार्टेड. 4 पैटर्न, लाइक कि जब हॉट फायर्स हो रही है तो वहाँ पे किस तरीके के फायर और फायर फ्लैशेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. दैट इज अ 4 पैटर्न क्रिएटेड बाय अ वेरी हॉट फायर दैट बर्न क्विकली एंड मूव फास्ट अलोंग इट पाथ सो दैट देयर कैन बी शार्प लाइन्स बिटवीन व्हाट इज बर्न एंड व्हाट इज इन. अ 4 पैटर्न ऑन अ डोर would help an investigator determine which side of the door the fire was on. हीट शेडो लेके कि फर्नीचर जो है आप ओरिजिन पॉइंट से जाएंगे, आप डोर्स पर और फर्नीचर पर फाइंड आउट कर पाते हो कि जो आपके स्लाइड्स जो रेसिड्यूज हैं वो किस तरीके से रह गए हैं वहाँ पर. तो हम हीट शेडोज के थ्रू भी फाइंड आउट कर पाते हो कि वहाँ पर किस तरीके की फायर हुई है. अकर्स व्हेन हैवी फर्नीचर शील्ड पार्ट ऑफ अ वॉल कैन हेल्प डिटरमाइन द ओरिजिन पॉइंट. ग्लासेस के जो आपके वर्ल्स हैं उनका मेल्ट होना या उसका ब्रेकआउट होना, तो वो सब भी आपको ओरिजिन और फायर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है.
चिमनी इफेक्ट्स, लाइक कि जब हम चिमनी इफेक्ट की बात करें तो फायर जब इग्नाइट हुआ है तो आपके सुपर हीटेड गैसेस जो है वो अब और फायर वॉल के थ्रू डायरेक्टली वहाँ से जा रहे हैं, कंटिन्यू स्ट्रेट अप जा रहे हैं सीलिंग के थ्रू. दैट इज अ चिमनी इफेक्ट. इफ सिंस फायर बर्न अपवर्ड देयर कैन बी अ चिमनी इफेक्ट where the fire ignites at a point, the superheated gases rise upward and form a fireballs which continue straight up to burn a hole in the ceiling. If the roof is not entirely burned and the fire investigator finds such a hole, the origin of the fire could be directly underneath. Color of smoke determine what type of a material was burned. There are table in a NFPA, so we can find out in there कि color smoke का color कैसा है, उसके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पे मटेरियल जो था वो कैसा था. कलर ऑफ फ्लेम, ये उसके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर वाली फायर इंक्रीज हुई है. लाइक दिस इज द ऑटोमोबाइल फायर, एक सीन हमने लिया है, ये आर्सन इन्वेस्टिगेशन किया है, इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं. यहाँ पर क्या क्या पॉइंट हुए हैं कि ये जो एक कार है और इसमें आर्सन इन्वेस्टिगेशन करना है कि लाइक ये क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिजिकल एविडेंस देखेंगे. उसके बाद यहाँ पर अगर आपको लग रहा है, क्योंकि ऑटोमोबाइल की बात हो रही है तो आर्सन जो एक्सीलरेंट्स हैं वो ऑलरेडी इनबिल्ट हैं इसमें, तो एक्सीलरेंट के थ्रू ये पूरी गाड़ी जो है, जो आपकी व्हीकल है, वो इमीडिएटली वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्न अप होने लग जाएगी, हीट प्रोड्यूस होने लग जाएगी उसमें. यहाँ पर जो एक्सीलरेंट था वो आपका गैसोलीन, आपका जो पेट्रोल था या डीजल, जो भी किसी की भी गाड़ी हो सकती है वहाँ पर. लाइक हम रेसिडेंस की बात करें तो इस तरीके के सीन से आप पता कर सकते हैं. जब आप फिजिकली एविडेंस देख रहे हो तो कलर ऑफ जो आपकी फायर है, फ्लेम्स है, उसके थ्रू आप पता कर सकते हो. आपके स्मोक क्लाउड से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किस तरीके से. तो जब हम नॉर्मली आप फायर टेंडेंसी देख रहे हैं उसकी, नॉर्मली अ फायर हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो वहाँ पर जो ओरिजिन है उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर. लाइक जैसे हम बात कर रहे थे कि जो आपकी स्मोक्स हैं, तो आपकी फायर जो है वो सीलिंग तक जाती है. तो ये आपके फोटोग्राफ्स के थ्रू फिजिकल एविडेंस जब हम ले रहे हैं, अगर यहाँ पे होल्स है तो हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके की आपकी फायर इंड्यूस्ड हुई है. ये यहाँ पर विंडोज़ का बर्नआउट होना और आपकी जो स्मोक्स हैं और फायर फ्लेम्स जो आपके दिख रही है, इसके थ्रू भी आप पता कर सकते हैं कि यहाँ ये सब जो है वो आपके फिजिकल एविडेंसेस में आएंगे. इनके थ्रू, या फिर आप दूर से भी देखकर, जैसे बहुत सारी जगह बहुत दूर से स्मोक का जनरेशन हो रहा है, ब्लैक हैवी डेंस क्लाउड्स बन रहे हैं, यहाँ पर पूरा बर्नआउट हो रहा है, उसके थ्रू भी आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके का आपका फायर इंड्यूस हो रखा है वहाँ पर. जब फायर स्टार्ट होती है इनिशियल स्टेज पर, अगर हम किचन एरिया की बात करें तो यहाँ पर एक कॉर्नर पर ही फायर इंड्यूस हुई है. फिर धीरे धीरे उसको 60 मिनट में 60 सेकेंड में हम उसको इंड्यूस कर सकते थे, और इंड्यूस होती जा रही है और एक्सटिंग्विश नहीं की है, इसलिए वहाँ पर सीलिंग पर भी क्लाउड बन गया और उसको धीरे धीरे बहुत सारे कंबस्टेबल मटेरियल भी मिलता जा रहा है, जिसके थ्रू फायर जो है वो इंक्रीज होती जा रही है. जब इन्वेस्टिगेटर आए हैं तो पूरे के फुली इन्वॉल्व फायर वहाँ पर प्रोड्यूस हो चुकी है. नाउ क्योंकि अब किचन की बात थी तो वहाँ पर बहुत सारे कम्बस्टेबल मटेरियल था, तो वो फुल आपका जो हाउस था उसमें भी फुल फायर हो चुकी है. इस फुल फायर में कलर ऑफ फ्लेम्स के थ्रू, कलर ऑफ फायर के थ्रू, कलर ऑफ आपका स्मोक जो है, स्मोक जनरेशन, क्लाउड ऑफ जनरेशन, और आपके जितने भी फिजिकल एविडेंस है उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की फायर हुई है. दिस इज द गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि वहाँ पे हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स किस तरीके से उन्होंने, अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो वहाँ पर वो किस तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैसा उसका कैरेक्टर था, कैसा वो प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ पे किस तरीके के हाइड्रोकार्बन्स और कितनी गैसेस वहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, किस तरीके का फ्यूल प्रोड्यूस्ड हुआ है. ये सब हम फॉरेंसिक एनालिसिस में करते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं. लाइक कि अगर आपको डायनामिक्स में जाना है तो आपको CFD का यूज़ करके हम बहुत सारे सीन्स को वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके डायनामिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. और जब हम गैस क्रोमेटोग्राफी में जाते हैं तो फायर सीन से कुछ डेब्रिश लेके आए और फायर फ्लेमेबल लिक्विड्स के थ्रू यहाँ पर नोन गैस आपने डाली, अननोन गैस डाली,
तो वो पर्टिकुलरली वहाँ पर आपको बता देगा कि किस तरीके की गैस प्रोड्यूस हुई थी, किस तरीके का लिक्विड था, वो सब बता देगा। अभी जब हम ड्यूरिंग द सैल्वेज भी जब हम अगर यहाँ पर आप सैल्वेज करने जाते तो यहाँ पे फ्लो रनर लगा के आप इनको सैल्वेज कर सकते थे, और आफ्टर द फिजिकल एविडेंस आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि पूरे जो आपके डोर्स विंडोज हैं वो पूरे बर्न आउट हो गए हैं, और यहाँ पर आपका आर्सन टाइप फायर प्रोड्यूस्ड होता दिख रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ आपको रेसिड्यूज दिख रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स दिख रहे हैं, तो इसीलिए आर्सन फायर हुआ है। ये कुछ तरीके के आपके होल्स के थ्रू आप पता कर सकते हो, फायर पैटर्न्स के थ्रू कि होल इन द फ्लोर कैन बी कॉज्ड बाय द ग्लोइंग combustion, radiation and intangible liquids. There is no justification that the appearance of the large curved blister is an exclusive indicator of accelerated fire. लाइक कुछ अनयूजुअल लोकलाइट डैमेजेस हो सकते हैं यहाँ पर, ऑड वेरिएशन जिनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ फिजिकल, उसके लिए फिजिकल एविडेंस के थ्रू सारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस आप पता कर सकते हैं। अनयूजुअल लोकल ये पैटर्न नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पर कुछ रेसिड्यूज के थ्रू उनको पता कर सकते हैं। अनयूजुअल है वो, आपने पता नहीं मतलब पहले से नहीं थे, आप उनका कोई पैटर्न नहीं था, फिर भी हम उसको देखकर और फॉरेंसिक एनालिसिस के थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फायर हाउस जब ये प्रोड्यूस हुआ है तो उसमें विटनेस रिपोर्टेड भी आप डाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ गैसोलीन्स की आप पता कर सकते हो कि वहाँ पे स्मेल कैसे आती है, लो प्रेशर वेव्स कैसे थे, फर्नीचर आपने वहाँ से जब लिया है तो वो कैसा था, लाइक कि कुछ इंटेंगेबल लिक्विड्स थे वो सारे वहाँ पर एक्सेलरेट किया होंगे फायर को, तो बर्न्स कैसा हुआ, इसके थ्रू भी हम इन्वेस्टिगेशन में ये भी एक पार्ट हो सकता है जिसके थ्रू आप लाइक कि कुछ सस्पेक्ट्स हैं, कुछ विटनेसेस हो सकते हैं, उनके बर्नआउट को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके थ्रू भी हम इन्वेस्टिगेशन पार्ट कर सकते हैं। ये कुछ अननेचुरल फायर स्प्रेड्स हैं जो लाइक कि रन आउट कर रहे थे, और वहाँ पे कुछ बर्न थे, कुछ अनबर्न है, इसके थ्रू हमको पता चल रहा है कि ये आर्सन फायर है। ये कुछ गैलन ऑफ गैसोलीन थी यहाँ पर पोर्ट थी, और उस पर्टिकुलर एरिया में वो अननेचुरल फायर डैमेज हुआ है, पूरी सीलिंग्स और फ्लोर जो है वो बर्न आउट हो गया है। ब्राइट येलो ऑरेंज फ्लेम, ब्लैक स्मोक, दिस इज द केस स्टडी। इंटेंस्ड हुआ है सब यहाँ पर। इस तरीके से फोटोग्राफ्स लेकर आप एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी रेसिड्यूज हैं उन सबको कलेक्ट करके हम अगर एज यू नो कि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम फॉरेंसिक एनालिसिस में उसको डालते हैं, तो हमको छोटी से छोटी चीज़ भी यहाँ पे जो रेसिड्यूज हैं वो आपको फाइंड आउट करके बता सकते हैं कि फायर किस तरीके की हुई है। इंटरमिक्स फायर भी हो सकते हैं कि कुछ हैवी पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ बर्न भी होंगे, कुछ अनबर्न भी होंगे, कुछ पैरालिसिस हो सकता है यहाँ पर, या फ्लैश पॉइंट हो सकता है, ब्लैकआउट, बर्नआउट, दोनों हर तरीके की क्योंकि अगर वहाँ पर एक्सेलरेट था तो वहाँ आपका और भी टाइप के फायर्स हो सकते हैं, कुछ रेनबो कलर्स भी आते हैं, कुछ शील्ड्स है, कुछ मटेरियल अलग है, तो ये वाला मटेरियल भी आपका वुड से डिफरेंट रहेगा, और वहाँ पे किस तरीके के रेसिड्यूज के थ्रू आप फायर एनालिसिस में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये किसी सीन पर आपका एक्सेलरेंट फाइंड आउट हुआ है, और ये कुछ बॉक्सेस और यहाँ पर फर्नीचर ये पूरा बर्न आउट हो चुका है। पूल फायर शेप में इन्वर्टेड कॉर्नर पैटर्न है कि इलेक्ट्रिक फायर भी यहाँ पर पोर्ड हो गई है, इन्वर्टेड कॉर्नर फायर पैटर्न्स, लाइक कि इससे आप पता कर सकते हैं कि फायर पैटर्न किस तरीके का था। आप सूट फ्लूम से पता कर सकते हैं, फायर फ्लूम से पता कर सकते हैं कि फायर पैटर्न किस तरीके का था। ये कुछ लिक्विड के थ्रू हैं कि वहाँ पे बिहेव कैसा किया था उन्होंने, मोस्ट फ्लोटेड कैसे थे, आपका एक्सप्लोजिव वेपर्स कैसा था, टेम्परेचर कैसा था, आपका पावर सॉल्वेंट्स कितने थे, सैम्पलिंग, एक्सीलरेंट फायर पैटर्न किस तरीके था। कुछ फिजिकल एविडेंस हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपका एक्सीलरेंट कंटेनर्स वहाँ पे आपने फाइंड आउट किया, कुछ इंस्ट्रूमेंटल इग्निशन डिवाइसेस आपने फाइंड आउट किए, चेंजिंग अरेंजमेंट कंबस्टेबल मटेरियल कैसा था, प्रॉपिंग्स कैसे थे आपके, एक्सप्लोजन था या बर्नआउट पैटर्न्स कैसे थे वहाँ पर। ये आपका आर्सन सीन्स को लेकर या आपका फायर इन्वेस्टिगेट जब आप करने गए हैं तो पर्टिकुलर फ्लोर प्लान के थ्रू आपने बताया है कि यहाँ पे जो एक्सीलरेंट था वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। ये पूरा इसका जो
एक सीन था, उसके थ्रू ऐसे ही जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं फ्लोर पर, जब पूरा बर्नआउट हो गया है तो हम उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो जो आपने आपका सिनेरियो लिया है उसमें आपका पॉइंट आउट कर दिया, और पॉइंट आउट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ रेड पॉइंट्स दिए हैं, उसके थ्रू वहाँ से आपका फायर इंड्यूस्ड हुई थी और फिर गैराज में और फुल इंड्यूस्ड हो गई है। तो इसके थ्रू आप एक जो फायर आपका ट्रेनिंग्स रहती हैं उसके थ्रू आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, या इन्वेस्टिगेट थ्रू तो इन्वेस्टिगेट किया है आपने, एनालिसिस कर सकते हैं उसको, फर्स्ट फिजिकल फॉर्म में आप बता सकते हैं उनको कि इतना फायर हुआ, इतना आपका फायर एविडेंस है, ओरिजिन कौन था वहाँ पर। इस तरीके से हम यहाँ पर फायर इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। ओके।